हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाड़ी और आज मैं आप सब लोगों को पढ़ाने वाला हूं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। मतलब आज हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ब्रीदिंग इंस्पायरेशन इनहेलेशन, एक्सपायरेशन एक्सहेलेशन कैसे होता है और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसको रेगुलेट कौन करता है। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि ब्रीदिंग खुद ब खुद होता है ऑटोमेटिकली, लेकिन ये टोटल गलत बात है। ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी रोल होता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स वरोली, रिदम सेंटर, कैरोटिड बॉडी, कैरोटिड एओर्टिक आर्टरी, ये सभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तब जाके कहीं पे ब्रीदिंग कंट्रोल होता है। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं कैसे किया जाए। So at the beginning I'm going to tell you what is mean by breathing, and then we will discuss about mechanism of breathing, and at the end we will discuss regulation of breathing. Let's start. So first of all, what is breathing? So what is breathing? Breathing is a process by which air which contain oxygen is taken inside the body and air which contain carbon dioxide is removed from the body. ब्रीदिंग एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम एयर में जो ऑक्सीजन भरा है उसे हम अंदर लंग्स के अंदर लेते हैं और लंग्स में जो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरा है उसे हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग। यस, ब्रीदिंग इज एन नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच air which contain oxygen is taken inside the lungs and air which contain carbon dioxide is through from the lungs. So this is breathing. I'll tell you how many times we breathe. We generally breathe around 16 times per minute. 16 times per minute, and that you can also feel by touching your chest region. Say for example, when you put your hand on the chest region, either left or right side, doesn't matter, you will feel that your lungs are coming forward, lungs are going backward, coming forward, going backward. What is this? When lungs are coming forward, they are trying to do the inspiration, inhalation, and when lungs are going backward, they are trying to do the expiration or exhalation. Yes, so this is the process called breathing. अगर हमें ये देखना है कि ब्रीदिंग कैसे होता है, तो बेसिकली हमें सिर्फ हमारे हाथ को लेके चेस्ट पे टच करना है, फिर वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो। लेफ्ट साइड में अगर आप नीचे की तरफ टच करोगे तो आपको हार्ट बीट भी महसूस होंगे, लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ टच करोगे यहाँ पे, या तो डॉक्टर देखो स्टेथोस्कोप लगाते हैं, तो स्टेथोस्कोप लगा के वो ये देखते हैं प्रॉपरली कि इनकी ब्रीदिंग प्रॉपरली चल रही है या नहीं। अगर ब्रीदिंग प्रॉपरली चल रही है तो डॉक्टर समझ लेते हैं कि ब्रीदिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब क्लियर है या नहीं। ठीक है, तो ये होता है ब्रीदिंग। नाउ आई टेल यू, ब्रीदिंग इज एक्चुअली मेड बाय द टू डिफरेंट वर्ड, एंड दिस टू डिफरेंट वर्ड इज inhalation and second one is exhalation. One is inhalation and second one is exhalation. So what is meant by inhalation and what is meant by exhalation? So inhalation means taking oxygen inside the lungs, and exhalation means removing carbon dioxide from the lungs outside. Inhalation means taking oxygen inside the lungs from outside, and exhalation means throwing the carbon dioxide outside the lungs. It is called exhalation. You can directly imagine by saying simply in means inside and X means outside, and we know that inside we will take only O2 and outside we will throw the CO2. So simply taking a
oxygen inside is called inhalation and throwing the carbon dioxide outside is called exhalation. Inhalation plus exhalation, inhalation plus exhalation, together it is called breathing. And how many times we breathe? We breathe approximately 16 times per minute. कुछ बुक्स में ऐसा दिया होता है 14 to 18 टाइम, कुछ बुक्स में ऐसा दिया हुआ है 16 to 18 टाइम, लेकिन आप एवरेज याद रखिए, हम 16 टाइम ब्रीदिंग करते हैं पर मिनट में. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. ये देखिए, मैंने अभी एयर को अंदर लिया जिसमें ऑक्सीजन है, तो मैंने ऑक्सीजन अंदर ली, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी, तो इसको हम कहते हैं वन ब्रीदिंग साइकिल. तो ऐसे कितने ब्रीदिंग साइकिल होते हैं? एटलीस्ट 16 ब्रीदिंग साइकिल पर मिनट होते हैं. देखिए, सो ऐसे 16 ब्रीदिंग साइकिल नियर अबाउट पर मिनट में होते हैं. सो 3 से 4 सेकंड के दौरान एक ब्रीदिंग साइकिल हो सकता है. So this is about inhalation and exhalation. This is the introduction of breathing. Now I'll tell you mechanism of breathing. So to understand mechanism of breathing, we have to understand mechanism of inhalation, mechanism of inhalation and mechanism of exhalation. Okay, अगर हमें ब्रीदिंग का मैकेनिज्म समझना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे हो रहे हैं. मैंने आपको वन लाइन में तो बता दिया, टेकिंग अ ऑक्सीजन इनसाइड इज इनहेलेशन, रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड इज एक्सहेलेशन. हमने ये इजीली देख लिया कि एयर ऑक्सीजन जब अंदर जाता है तब उसे हम कहते हैं इनहेलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड जब हम बाहर छोड़ते हैं इसे हम कहते हैं एक्सहेलेशन. लेकिन टेक्निकली कैसे होता है हमें वो देखना है, और कौन कौन से ऑर्गन इसमें रोल प्ले करते हैं. ठीक है, तो आप ये पहले इन ऑर्गन्स के नाम समझ लीजिए. ठीक है, ऑर्गन्स प्ले रोल इन ब्रीदिंग. ठीक है, तो मैं यहाँ पे जिन जिन ऑर्गन के नाम लिख रहा हूं वो सभी के सभी ऑर्गन ब्रीदिंग में रोल प्ले करते हैं. फर्स्ट, intercostal muscle, intercostal muscle. Second, ribs. Third, sternum bone and diaphragm. यस, अब आप इसमें सोचोगे कि लंग्स कहाँ है. एक्चुअली लंग्स के ही पार्ट है. इंटरकोस्टल मसल्स आर मसल ऑफ लंग्स. रिब्स आर लोकेटेड ऑन द लंग्स. दे आर पार्ट ऑफ अ बोन. Sternum bone is a middle bone, also called as a breast bone, and diaphragm located below the lungs. तो हमें लंग्स के बारे में दो चीजें देखनी है. यस, फर्स्ट, वॉल्यूम of lungs and pressure in lungs. ठीक है, तो एक चीज याद रखिए, जब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं तो इन सभी के अंदर चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस होने वाले ऑर्गन इंटरकोस्टल मसल, रिब्स, स्टर्नम बोन, डायफ्राम, और लंग्स का वॉल्यूम और लंग्स का प्रेशर, ये सभी चीजें हमें डिस्कस करनी होती है. तो पहले मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूं, उसके बाद मैं आपको रोल प्ले करके बताता हूं. ठीक है, ये देखिए, ड्यूरिंग इनहेलेशन, एक्चुअली इनहेलेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस.
inhalation is an active process. During inhalation, intercostal muscle yes comes outward intercostal muscle uh, and ribs comes outward, sternum bone also raise, and diaphragm almost become flat, and volume inside lungs increases, and pressure inside lungs decreases. ये देखिए, ये पूरा का पूरा परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है इनहेलेशन का. अब आप ये देखिए, मैं आपको टेक्निकली करके बता रहा हूं. ठीक है, ये देखिए, inhalation means taking oxygen inside the lungs, and it is active process. During inhalation, intercostal muscle and ribs come forward. ये आगे की तरफ आ जाते हैं. Yes, comes forward मतलब outward, आगे की तरफ. And sternum also raise. आगे का जो sternum bone होता है वो भी ऊपर आ जाता है. And diaphragm almost becomes flat shape. diaphragm पूरा का पूरा सा फ्लैट हो जाता है, और लंग्स की जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बढ़ जाती है, और प्रेशर जो है वो कम हो जाता है. ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूं. जब हम इनहेलेशन करते हैं तब हमें ऑक्सीजन अंदर लेना है, तो ऑक्सीजन अंदर तभी ले पाएंगे जब वॉल्यूम अंदर ज्यादा होगा, एम्प्टी स्पेस ज्यादा होगी. और अगर एम्प्टी स्पेस है, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर नहीं होगा. यस, क्लियर है? ये देखिए, ये हमारे लंग्स है. लंग्स में ऑलरेडी ऑक्सीजन भरा पड़ा है, तो प्रेशर होगा या नहीं होगा? प्रेशर होगा. लेकिन स्पेस नहीं है, तो वॉल्यूम क्या है? नहीं है. लेकिन जब हम इनहेलेशन करना चाहते हैं तब हम पहले से ही लंग्स को क्या कर लेंगे? एम्प्टी कर लेंगे. तो लंग्स अगर एम्प्टी है तो उसमें प्रेशर जीरो है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो प्रेशर जीरो है, और एम्प्टी होने के कारण वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ज्यादा है. रिमेंबर, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ यू कैन से inhalation, intercostal muscle and ribs comes forward or outward. Sternum bone also raise up. Diaphragm becomes almost flat. Diaphragm एकदम सीधा हो जाता है. Volume inside the lungs increases and pressure inside the lungs decreases. Why it is so? Inside the lung, we are trying to take the oxygen inside from outside. So when we take the oxygen inside, that time lungs are empty. So empty lungs do not have oxygen. Therefore, pressure is zero or no pressure, and volume inside the lungs is more. So during inhalation, intercostal muscle, ribs and sternum. During inhalation, intercostal muscle and ribs come forward or outward. Sternum becomes raised up and diaphragm becomes almost flat. Volume inside the lungs increases and pressure inside the lungs decreases. Why pressure decrease? Because there is no O2. Why volume increase? Because we are trying to take O2 inside. No? Therefore, we have emptied everything. It is volume increases but pressure decreases. Pressure is depending on presence of oxygen. अगर अंदर ऑक्सीजन है ही नहीं तो प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा. अब एक्सहेलेशन
उनका बिल्कुल अपोजिट होता है। तो देखिए कैसे होता है। एक्सहेलेशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल पैसिव प्रोसेस। एक्सहेलेशन इज पैसिव प्रोसेस लाइक इट वाज, yes, inhalation was active process. Active process means in which there is a need of some energy, and passive process which takes place automatically. अब आप ये देखिए, अगर मैं मेरे हेड को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी लगती है, लेकिन रिलैक्स होने के लिए कोई एनर्जी नहीं लगती। सो इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्सहेलेशन में रिलैक्सेशन होता है। इनहेलेशन इसके लिए एक्टिव प्रोसेस है, एक्सहेलेशन इसकी पैसिव प्रोसेस है। इनहेलेशन में जो चीजें होती है एक्सहेलेशन में उसकी बिल्कुल उल्टी होगी, अपोजिट होगी। तो देखते हैं कैसे। एक्सहेलेशन इज अ पैसिव प्रोसेस इन विच intercostal muscle and ribs goes inward, यहां पे क्या था, आउटवर्ड, इनवर्ड, एंड sternum also relax, and diaphragm becomes dome shape, and volume inside lungs decreases, and pressure inside lungs increases। ठीक है, अब आप ये देखिए, ऊपर की चीजें तो आप समझ जाओगे इजीली, सिर्फ ये मेन चीजें ये देखिए। Why in exhalation volume inside the lungs decreases and why pressure increases, and why in inhalation volume inside the lungs was increased and pressure inside the lungs was decreased। अब आप ये समझ लीजिए, एक बलून है, उस बलून में हम एयर अब बाहर से ब्लो कर रहे हैं अंदर। तो जब हम एयर ब्लो कर रहे हैं उसके पहले उसमें एयर नहीं है, तो प्रेशर क्या था, प्रेशर था 0। लेकिन अगर बलून सपोज पहले से बड़ा था तो उसमें वॉल्यूम ज्यादा था लेकिन प्रेशर 0 था। लेकिन जब हम एयर भर देंगे तो उसमें वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें एयर आ जाएगी, और प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अगर ऑक्सीजन आ जाती है तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब आप यहां पे देखिए, exhalation is a passive process which takes place automatically in reverse to the inhalation. In exhalation, intercostal muscle means muscle of lungs and ribs goes inward, and sternum also relax. Diaphragm becomes now almost dome shape, ऐसे C shape, उल्टा C shape आता है। Diaphragm becomes almost dome shape, and volume inside the lungs decreases because you have filled lungs by oxygen, and pressure inside the lungs is increased because of oxygen। अब मैं आपको दोनों करके बताता हूँ। देखिए, during inhalation intercostal muscle, ribs and sternum comes forward, diaphragm becomes almost flat, and volume inside the lungs increase and pressure inside the lungs decrease। And during exhalation intercostal muscle, ribs goes inward and sternum get relaxed, diaphragm again becomes a becomes a dome shape, and volume inside the lungs now decrease due to the oxygen, and pressure inside the lungs increases due to the oxygen। वॉल्यूम और प्रेशर ये दोनों के दोनों चीजें ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करती है। इनहेलेशन में क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं अंदर की तरफ, तो फिलहाल ऑक्सीजन लंग्स में नहीं है तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ज्यादा है।
और ऑक्सीजन नहीं है तो प्रेशर क्या है, प्रेशर भी नहीं है। लेकिन जब हम एक्सेलेशन में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं, तब क्या होता है, हमारे अंदर लंग्स के अंदर ऑक्सीजन बढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन बढ़ने के कारण वॉल्यूम कम हो जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये होता है मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। आई होप सो टेक्निकली यू हैव properly understood how does mechanism of inhalation and exhalation takes place. Now we are going to discuss about regulation. Okay guys, now we are going to discuss about regulation of breathing, that how breathing is regulated by our brain. So I'll tell you, regulation is controlled by medulla oblongata. Medulla oblongata is a part of our brain. It is generally the part of hand brain, and this medulla oblongata is connected with pons. It's actually called pons varolii, and there are some rhythm center. What are these rhythm center? I'll tell you everything. Now just imagine these are our lungs. Okay, these are our lungs. तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एग्जैक्टली ये ब्रीदिंग कंट्रोल की जाती है. See, when just a minute. Carotid body and aortic. Yes, now just imagine one thing permanently in your mind. When you wanted to take oxygen inside, remember that time you have carbon dioxide in your lungs. जब हम ऑक्सीजन बाहर से लेना चाहते हैं उस वक्त हमारी बॉडी में पहले से क्या अवेलेबल होता है, तो पहले से हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होता है और हम क्या लेना चाहते हैं, ऑक्सीजन बाहर से. सो रिमेंबर, when aortic artery sense presence of more CO2 in blood, जब एओर्टिक आर्टरी ये सेंस करती है कि ब्लड में CO2 का क्वांटिटी ज्यादा है, तब ये आर्टरी कैरोटिड बॉडी को सेंस प्रोवाइड करती है, मैसेज प्रोवाइड करती है, एंड कैरोटिड बॉडी गिव्स दिस मैसेज टू द रिदम सेंटर, and rhythm center is connected to pons varolii and pons varolii is connected to medulla oblongata. Then medulla oblongata do some changes for inhalation. ओके, अब आप ये देखिए, जब हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तब एओर्टिक आर्टरी ये मैसेज कैरोटिड बॉडी को ट्रांसफर करती है, और कैरोटिड बॉडी रिदम सेंटर पोन्स वरोली और पोन्स वरोली मेडुला ओब्लोंगेटा. फिर मेडुला ओब्लोंगेटा इनहेलेशन करने के लिए कुछ चेंजेस करती है. क्या चेंजेस करते हैं हमें पता है, जैसे इंटरकोस्टल मसल और जो ये रिब्स है और स्टर्नम है वो आउटवर्ड आ जाएंगे, डायफ्राम ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाएगा, वॉल्यूम इनसाइड द लंग्स बढ़ जाएगा और प्रेशर इनसाइड द लंग्स कम हो जाएगा. फिर हम ऑक्सीजन अंदर लेंगे, जैसे ऑक्सीजन अंदर आ जाता है तो ये प्रोसेस नॉर्मल होती है. मतलब हम जो ये ब्रीदिंग कर रहे हैं, इन आउट इन आउट इन आउट, ये जो प्रोसेस कर रहे हैं ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली नहीं होती. इस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए मेडुला ओब्लोंगेटा, पोन्स वरोली जैसे ब्रेन के काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन रोल प्ले करते हैं. सो ब्रीदिंग सिस्टम
is controlled by central nervous system. An important organ of central nervous system is a brain, and part of a brain is medulla oblongata, which is controlling breathing. Yes. Now remember, sometime अगर आप ये सोचिए कि हम ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन काफी कम है, तो हमारी ब्रीदिंग बढ़ जाती है. तो ये ब्रीदिंग क्यों बढ़ती है? जैसे ही हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो डायरेक्टली मैसेज मेडुला ऑब्लिंगेटा तक जाती है. मेडुला ऑब्लिंगेटा कंटिन्यूएशन ब्रीदिंग करने के लिए हमें स्टिमुलेट करता है. उस समय हमारे बॉडी में एड्रेनालिन हार्मोन भी बढ़ते हैं, क्योंकि एड्रेनालिन हार्मोन बढ़ता है तो हार्ट बीट भी बढ़ जाते हैं. सो ये था हमारा टॉपिक, mechanism of breathing, how inhalation takes place, how exhalation takes place, and regulation of breathing, that breathing is controlled by which organ. So it was a complete topic, breathing mechanism and regulation of breathing. Thank you so much for watching this video. Have a good day.